अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 260 चैप्टर नंबर 12। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स बेसिकली पढ़े थे कल। किसके? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का मेन इंट्रो मैंने आपको दिया था। हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एटम। एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और एटम के साइज़ में क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। फिर हमने उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर सारा मैंने आपको बताया। आइसोटोप्स हमने पढ़े। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 12.2 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, पेज नंबर 260 पर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Fundamental forces of nature. To understand the structure of the nucleus, it is important to note the nature of the forces that bind the nucleon together. But before that, we should note the basic forces in nature. Despite the apparent complexity within the universe, all interaction in the universe are governed by four basic forces known as fundamental forces. These forces control how objects move, interact, and behave at different scales from tiny atom to massive galaxies. The four fundamental forces are gravity, electromagnetism, weak nuclear force, and strong nuclear force. Number one, gravitational force. Gravitational force or gravity is one of the four fundamental forces of nature. It is weakest of the four but is a long range force. It is an attractive force and arises due to the gravitational interaction between the bodies. The gravitational force between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. We consider for massive objects such as the sun, for giant planets, gravitational force is considered to be significant as the masses of these objects are large. However, on an atomic level, the force is considered to be negligibly weak. The electromagnetic force is responsible for electric field and magnetic field interactions. Like the gravitational force, the electromagnetic force follows an inward square law but is much stronger than gravity. It governs a vast range of phenomena from atomic structure and chemical bonding to electricity, magnetism, and light propagation. James Clerk Maxwell 1861 formulated a set of four fundamental equations that unified electricity and magnetism into electromagnetism. These equations describe how electric and magnetic field interact and how electromagnetic waves propagate. These equations show that electric and magnetic fields are not separate forces but are two aspects of single electromagnetic force. One out of the four fundamental forces, nuclear forces are the strongest attractive forces. Electromagnetism hold matter together, but there was no explanation on how the nucleus is held together in the atom. If we only consider the forces of electromagnetism and gravity, the nucleus should fly off in different direction. The stability of the nucleus implies that another force should exist within the nucleus which is stronger than the gravitational force and electromagnetic force. This is where nuclear force come into play. Strong nuclear forces are responsible for holding the nuclei of atom together. They only exist inside the nucleus, so we call them as short range forces. The strong nuclear force act as an attractive force between all nucleons, protons, and neutrons alike. Thus, protons attract each other while the strong nuclear force at the same time they repel each other via the electric force. A neutron being electrically neutral can attract other neutrons or protons by the strong nuclear force. Weak nuclear forces are responsible for the radioactive decay, particularly the beta decay and interaction involving neutrino. Unlike the other fundamental forces, the weak force can change the identity of particles, making it essential for processes like nuclear fusion in stars and the decay of unstable atomic nuclei. The relative strength and range of above four forces are given in table 12.1. टॉपिक जिसकी मैंने अभी रीडिंग की बेटे ज़रा
काफ़ी लेंथी रीडिंग थी, आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन टॉपिक आप लोगों का बहुत इजी है। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना इजी टॉपिक था जो हमने अभी रीड आउट किया। हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। पूरे स्ट्रक्चर को हम किसका स्ट्रक्चर बेसिकली पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ रहे थे बेटे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा कुछ हम अब फर्दर आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, यानी कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट टाइप की जो फोर्सेस हैं जितनी भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है उनको हम देखें। ये तमाम की तमाम फोर्सेस न्यूक्लियन को इकट्ठे होल्ड करती हैं, इकट्ठे जोड़े रखती हैं, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए इन फोर्सेस को जानना बेटे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तमाम बहुत सारी फोर्सेस हमारे पास आती हैं। जनरली देयर आर 4 बेसिक फोर्सेस हैं, और इन 4 बेसिक फोर्सेस को, जिससे पूरे यूनिवर्स में ये प्रेजेंट है, और इन तमाम की तमाम फोर्सेस का एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शंस है, ठीक है। ये फोर्सेस जो हैं इनको हम जनरली, इनके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं बेटे वो क्या करते हैं, यानी कि कॉमन बेसिक फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, और इन 4 फोर्सेस को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। और इन फोर्सेस ने डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं विद इन द यूनिवर्स बेटे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट स्केल्स पे इनका बिहेवियर जो है फ्रॉम टाइनी आइटम्स से लेकर बिग ग्लासेस, यानी कि छोटे से छोटे एटम से लेकर बहुत मैसिव चीज़, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बुक में बताया हुआ है कि एक गैलेक्सी हमारे पास भी हो, तो ये तमाम की तमाम फोर्सेस उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि इन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं दे आर 4 इन नंबर। ये 4 इन नंबर हैं। कौन कौन सी हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और फोर्थ वाली का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन इन तमाम फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इनका सारा डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपको पॉइंट वाइज जो है इनको रिटन फॉर्म में मैं लिख दूं, कि अगर आपका सपोज एक फोर्स पे भी नोट आता है तो वहाँ पे बेटे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, बल्कि आप इजीली उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सको। सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्स हम स्टडी करेंगे डैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सी फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या कुछ पढ़ना है, क्या यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ोगे, मैं आपको बता रही हूँ। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर किस तरह का है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ये इसकी नेचर है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज बेटे इनफिनिट होती है, लेकिन ये वीक होती है विद डिस्टेंस, क्योंकि आपने पढ़ा था F = 1/r²। जिस तरह डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा ये फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम है। कैरियर पार्टिकल यहाँ पे जो है वो डैट इज ग्रेविटॉन। और उसके बाद जो थ्योरी है इस फोर्स के लिए जो ज़्यादा एप्लीकेबल है डैट इज़ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अब आते हैं, ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया ना, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक ऑफ द यूनिवर्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि माइक्रोस्कोपिक नहीं बल्कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। इस फोर्स ने प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स पे जो है वो होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना, तो इस फोर्स की वजह से बेटे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी की वजह से मोशन ऑफ स्टार्स हो रही है, गैलेक्सीज की मोशन हो रही है, डिफरेंट टाइप के फिनोमेना जैसे कि टाइड्स और ब्लैक होल्स का फिनोमेना है, उन सब में जो फोर्स यूज़ हो रही है डैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो यहाँ पे अगर आप देखो जो बात मैंने अभी की, अगर इस पे आप गौर करो तो ये क्या चीज़ हमने बता दी, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स बता दी। वो एग्जांपल जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूज़ हो रही है, मैंने आपको क्या बताया, प्लैनेट्स हैं जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन ऑफ स्टार है, गैलेक्सीज हैं, इसके अलावा टाइड्स एंड ब्लैक होल्स का फिनोमेना। दूसरी बात हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एटॉमिक लेवल पे जब हम देखते हैं तो ये फोर्स को कंसिडर किया जाता है एज ए मतलब एटॉमिक लेवल पे। पहले तो हमने बात कर ली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, अब हम माइक्रो पे बात कर रहे हैं, यानी कि एटम की तरफ हम आ गए हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जब हम इसको देखते हैं तो इसके फीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली क्या फीचर्स होते हैं कि एटॉमिक लेवल पे अगर बात कर रही हूँ मैं, तो एटॉमिक लेवल पे दिस फोर्स इज, हम क्या कह सकते हैं कि नेग्लिजिबली ये क्या होती है, ये वीक होती है एट एटॉमिक लेवल, ठीक है। और एटॉमिक लेवल पे बेटे इसके यूनिक फीचर्स हैं एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट फोर्सेस। इसके फीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। कैसे कि इट एक्ट बिटवीन ऑल मैसेस, ठीक है, हर मैसेस के। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है, इसी को मैं एक्सप्लेन आगे कर रही हूँ कि यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो फोर्स है, इट एक्ट बिटवीन ऑल मैसेस एंड इट कैन नॉट बी शील्डेड और ब्लॉक्ड। और तीसरी मेन चीज़ आपने याद क्या रखनी है कि इट इन्फ्लुएंसेस टाइम एंड स्पेस, यानी कि स्पेस टाइम कर्वेचर की बात मैंने यहाँ पे की। तो इन शॉर्ट बेटे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो अराइज होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ के दरमियान में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी तो ये फोर्स जो है ये क्रिएट होगी या ये फोर्स जो है वो अराइज होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज़ के दरमियान में, यानी कि जो दो बॉडीज़ है उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटे वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है उनके मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल। किसके इक्वल, उनके मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस, यानी कि दो मैसेज हैं, कोई भी दो मैसेज हैं, एक ये हो गया सपोज, इधर हो गया, एक M1 है एक M2 है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इन दोनों मैसेज के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको आप अंडरलाइन कर लो, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टेटमेंट है। हमने पढ़ी हुई थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय IR स्क्वायर, याद अगर आपको आए, ठीक है। उसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड फोर्स हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम पढ़ेंगे कि इसका नेचर जो है बेटे, जैसे पहले भी मैंने आपको नेचर बताया तो इसका भी नेचर मैं आपको बता रही हूँ। इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसका नेचर क्या था, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटे पढ़ाई थी तो मैंने आपको उस केस में उसका भी नेचर बताया था और मैंने बताया था कि उसका नेचर जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। इसकी रेंज जो है वो क्या है, इन्फिनिट है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिट है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको नोट कर लें आप, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेटे ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द यूनिवर्स है, यानी कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इनकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें। और पार्टिकल कैरियर, यहाँ पे जो कैरियर पार्टिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, डेट आर फोटोन। और जो थ्योरी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, डेट इज़ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि QED उसको हम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपने बताना है कि जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का नाम यहाँ पे आप पढ़ोगे 1861 में, उसने एक सेट दिया था 4 फंडामेंटल इक्वेशंस का, जो कि यूनिफाइड करती थी बेटे इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को किस ब्रांच के अंदर कंबाइन कर देते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। इसने क्या किया था, कंबाइन कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को, किस तरह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ा डिटेल से।
तो यहाँ पे क्या है कि इसने एक इक्वेशन हमें बता दी थी और वो इक्वेशन हमें डिस्क्राइब करती थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं, इनका आपस में एक इंटरेक्शन है, ठीक है। यानी कि इसने इक्वेशंस दी थी और वो इक्वेशन डिस्क्राइब करी थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो किस तरह से जनरेट होती हैं, किस तरह से प्रोपोगेट होती हैं, ये भी जो है इक्वेशन से हमें इजीली मतलब इक्वेशन डिस्क्राइब करी थी। इसके अलावा इक्वेशन जो है वो हमें ये भी शो करती थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं दे आर नॉट सेपरेट फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं ये सेपरेट फोर्सेस नहीं होती, बल्कि ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटे इसका नेचर में रोल क्या है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी एक बहुत ज़्यादा वास्ट रेंज है बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट प्रोपेगेशन में इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज है। बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो सारे के सारे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो यूज़ होगी, और इट हैज़ सम यूनिक फीचर्स भी इसके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। क्या फीचर्स हैं इसके यूनिक बेटे कि ये ऑपरेट करती है बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ये फोर्स कहाँ ऑपरेट करेगी, ये ऑपरेट करेगी बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा ये फोर्स मैंने आपको पहले बता दिया, इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये फोर्स बेटे रिपल्सिव भी हो सकती है, और ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द फोर्सेस जो कि हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे बेटे सारे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। इधर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आपको स्टेटमेंट दी हुई है, क्या बताया हुआ है कि लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी फॉलो करती है इनवर्स स्केयर लॉ को, लेकिन ये फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ग्रेविटी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मतलब यहाँ पे लिखा भी है आपकी बुक में, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी। ग्रेविटी से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन वैसे ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। क्लियर। थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारी थर्ड फोर्स आती है डेट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं, ठीक है। कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को फर्दर हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स को आगे फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक आएगी आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक आपकी आएगी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर मेन पॉइंट्स, मेन करैक्टर्स इसके मैं आपको बताऊं तो बेटे इसका जो नेचर है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर डिस्टेंस शॉर्ट हो तो ये रिपल्सिव भी होता है। रेंज इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी और अबाउट 10⁻⁻15 जो है वो इसकी रेंज होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मैंने क्या कहा, वर्ड बोला, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और इसके अलावा जो कैरियर पार्टिकल है डैट इज ग्लूऑन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने वहाँ पे कैरियर पार्टिकल क्या पढ़े थे, फोटॉन, तो यहाँ पे जो कैरियर पार्टिकल होते हैं बेटे डैट आर नोन एज ग्लूऑन। और जो यहाँ पे गवर्निंग थ्योरी है जो इस चीज़ को, पूरी फोर्स को एक्सप्लेन करेगी, डैट इज क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बेटे पढ़ें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखती है, ठीक है, होल्ड करती है। अब समझ आ गई कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए बेटे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये बाइंड करेगी, इकट्ठा करेगी, होल्ड करेगी किस चीज़ को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को टुगेदर इन द न्यूक्लियस। आपको पता है ना न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किसने होल्ड किया होता है, ये होल्ड किया होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने, इनको कंबाइनली होल्ड किया होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर स्टडी करें कि ये ओवरकम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन को, और इसके अलावा इट आल्सो बाइंड क्वार्क्स विद इन द
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स प्रेजेंट होते हैं, उनको भी ये बाइंड अप करती है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है बेटे, एक यूनिक फीचर इसका याद रखना है कि दे डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे हम वर्ड पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन आपको पता है कि एक फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम का है डेट इज इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटे एक्ट नहीं करती। क्लियर, ये इसका एक यूनिक फीचर है, ठीक है, आपने याद रखना है। इसके अलावा कलर चेंज है, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके जो इट हैज़ 3 टाइप्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस के ओपोजिटली अगर देखा जाए तो इसके जो हैं 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू है। उसके बाद हम अपनी लास्ट की तरफ चलते हैं, डैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जो लास्ट फोर्स है हमारी फोर्थ वन, डैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी नेचर बताऊँ तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके प्रोसेस। ये डिके प्रोसेस के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल है। इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, और इसकी रेंज कितनी है? 10⁻⁻17 मीटर इसकी रेंज है। और अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, अभी तक सबकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है बेटे वीकर देन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी जो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ी हैं, उन दोनों फोर्सेस की निस्बत इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? वीकर है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं देयर स्ट्रेंथ इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है बेटे वो ज़्यादा होती है किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी ना, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, जो ग्रेविटी जो शुरू में हम बिल्कुल फर्स्ट वन जो पढ़ के आए थे। दोबारा बता देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो। मैंने आपको क्या कहा कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेटे ये वीकर होती हैं। किससे वीकर होती हैं? ये वीकर होती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से ये वीकर होती हैं। जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो कैरियर पार्टिकल आएंगे वो हमारे पास आएंगे, उनको पार्टिकल्स को जो ये कैरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसॉन्स कहते हैं। और यहाँ पे जो गवर्निंग थ्योरी हम यूज़ करेंगे डैट इज़ इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। और जब ओवरऑल हम इसके नेचर की बात करते हैं तो वीक फोर्स जो है ये असेंशियल होती है किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। ये फोर्स किस लिए ज़रूरी है? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका नेचर में रोल क्या है इस फोर्स का? तो बेटे इसका मेन रोल क्या है कि ये असेंशियल है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। ये किस लिए असेंशियल मैंने बता दी, इट इज़ असेंशियल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, पार्टिकुलरली स्पेशली कौन सा रिएक्शन? बीटा डिके। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है इन फ्यूजन रिएक्शन और डैट पावर द सन एंड अदर स्टार, यानी कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा नोटिसेबल जो है वो फंक्शन है। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप की फोर्सेस पढ़ाई। उन तमाम फोर्सेस के मेन करैक्टर सारे मैंने आपको बताए। वहाँ की जो स्टेटमेंट थी वो सारी मैंने आपको बताई। और अच्छा एक बात और ठहरो मैं आपको बताऊं, मैं शायद स्किप कर गई हूँ। हमने जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अभी पढ़ी हैं बेटे उन दे हैव सम यूनिक फीचर्स, उनके कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के। इनके यूनिक फीचर्स क्या हैं कि दे आर द ओनली फोर्स दैट कैन चेंज द टाइप ऑफ क्वार्क। और सेकंड इनका क्या है? दे वायलेट सर्टन सिमेट्रीज, ये कुछ सिमेट्रीज को भी वायलेट कर देती हैं। और दे आर क्रूशल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स इन स्टार। स्टार में जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए भी बेटे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये क्रूशल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पीछे आओ तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया आपकी बुक में। यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट फोर्सेस बताई हैं। उन फोर्सेस की अप्रोक्सीमेटली जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपको बताई हुई है, और उनकी यहाँ पे रेंज भी बताई हुई है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की रेंज है सारी, वो भी आपको बता दी है कि इन्फिनिट किसकी है और जो किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, वो भी सारी यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम है, फोर्सेस हैं चारों। ये इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये इनकी क्या है? हमारे पास रेंज है। ये भी आपने टेबल भी करना है। इसके बाद बेटे मैं आप लोगों को मेन जो पॉइंट्स है ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में है। अगर आपके पास यहाँ पे
किसी भी फोर्स पे नोट आ जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट वाइज हेडिंग दे के इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करो। मैं कोशिश करती हूँ कि मेन मेन पॉइंट्स इन फोर्सेस के सारे एक नोट की फॉर्म में आपको लिख दूँ। अगर इन केस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो वहाँ पे आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बेटे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार लें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले आप लोग अपने अपने नोटबुक्स खोलें, हेडिंग दें आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपको मैंने अभी हमने सारी पढ़ी कितनी, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। वन बाय वन इनको इनके मेन मेन करेक्टर्स में आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ। पहले हमने क्या पढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है ना हमने पहले, FORCE, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है। मैंने भी आपको बताया था कि वो किसके इक्वल है, वो है उनके मैसेस के प्रोडक्ट के इक्वल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन, जो दोनों मासेस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बेटे इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे राइट कर दूंगी। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसका नेचर। इसका नेचर क्या था, ऑलवेज अट्रैक्टिव। आपने याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। दूसरा यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसकी रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिट है। आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, उस पर भी इसकी रेंज दी गई है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर इसकी हम देखेंगे तो वीकेस्ट है ये, वीकेस्ट ऑफ द 4, यानी कि चारों फोर्सेस में से वीकेस्ट है ये। उसके बाद कैरियर पार्टिकल बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल होंगे वो कैरियर पार्टिकल कौन से हैं, ठीक है। कैरियर पार्टिकल इस केस में हमारे पास बेटे क्या होते हैं, दे आर ग्रेविटॉन, उसको ग्रेविटॉन कहते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरी गवर्न करेंगे वो कौन सी होगी, हम यहाँ पे उसको हेडिंग दे लेते हैं गवर्निंग थ्योरी। गवर्निंग थ्योरी यहाँ पे कौन सी आप लोगे, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये थ्योरी किसने दी थी, अभी हमने पढ़ा आइंस्टाइन ने, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने इसका रोल पढ़ा इन नेचर, ठीक है। नेचर में आपने हेडिंग देनी होती है अगली, रोल इन नेचर, ठीक है। रोल इन नेचर मैंने आपको सारा पढ़ाया था, इसकी मेन मेन एग्जांपल्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। वो सारी आपने यहाँ पे लिखनी है और इन द एंड आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके यूनिक फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। बेटे मैंने आपको ना इसके रोज बताए थे और मैंने आपको भी इसकी एग्जांपल्स भी बता दी हैं सारी, मैंने स्टार्स वाली, प्लैनेट्स वाली, ठीक है, वो बताई थी। इसके यूनिक फीचर क्या है, एक्ट्स बिटवीन ऑल मैसेस, ठीक है, ये हर मैसेस के बीच में जो है वो एक्ट करेगी। सेकंड इसका क्या क्या है, कैन नॉट बी शील्डेड, कैन नॉट बी शील्डेड। फिर क्या है हमारे पास, इन्फ्लुएंसेस, FLUEN, इन्फ्लुएंसेस टाइम एंड स्पेस, ठीक है। ये 3 इसके यूनिक फीचर्स हैं। अब ये हमने क्या कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिए। अगली हमारी सेकंड फोर्स क्या थी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हेडिंग दे लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
बेटे ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। हालांकि ये सारा कुछ मैं आपको भी बता चुकी हूँ, आप लोग खुद भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी जस्ट के आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसका भी हम नेचर लिखेंगे, ऊपर भी हमने नेचर लिखा, ठीक है। इसकी नेचर क्या है? इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्लियर। फिर हम इसकी बात करेंगे, इसकी रेंज की बात करेंगे, ठीक है। उसकी भी रेंज की बात की थी, इसकी रेंज क्या होगी? इट इज आल्सो इन्फिनिट। ये इन्फिनिट है, वो भी इन्फिनिट थी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, लेकिन चलो इन्फिनिटी सही है आप लोगों के लिए, ऐसे रहने दें। फिर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी देखी जाए तो बेटे दिस इज सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी कैरियर पार्टिकल्स होंगे ना, ऊपर भी आए थे हमने लिखे। यहाँ पे जो कैरियर पार्टिकल्स होते हैं डेट आर नोन एज फोटॉन। आप सब लोग फैमिलियर हो फोटॉन से, हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी हुई है ना, फोटॉन पढ़े थे हमने उसमें। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्निंग थ्योरी है वो कौन सी है? वो है क्वांटम। देखो उसी से, फोटोन से ही पता चल जाता है, क्वांटम थ्योरी होगी यहाँ पे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, ये थ्योरी होगी। और उसके बाद इसका आता है यूनिफिकेशन, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगली हेडिंग आप जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में बेटे आपने क्या राइट करना है? जो कुछ आपकी बुक में लिखा है, हमने आपको डिटेल से बताया था। यहाँ पे हम जेम्स क्लर्क की बात करेंगे, ठीक है। CLERK, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की यहाँ पे आप सारी बताओगे कि उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसकी इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, वही यहाँ पे आपने राइट करना है। उसके बारे में हम आगे चल के फर्दर ही बताएंगे। फिर आगे इसका भी हम क्या लिखेंगे? रोल इन नेचर जो है वो भी लिखेंगे हम इसका, कि नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल है, ठीक है। इसका जब आप रोल देखोगे बेटे कि इसका नेचर में क्या रोल है, तो बेटे ये जो है डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट प्रोपगेशन, सारे के सारे जो हैं उन पे जो है ये इसका डिफरेंट टाइप का रोल है। आप इसका सारा खुद ही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक दो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी बेटे आप लोग खुद लिख लेना। मतलब दिस governs a vast range of phenomena from atomic structure, chemical bonding, magnetism, और भी हो सकता है जैसे कि लाइट प्रोपगेशन भी, ठीक है। क्लियर? ये मेन पॉइंट्स हम दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है? हमने इसके भी यूनिक फीचर्स देखने हैं, ठीक है। यूनिक फीचर्स इसके भी आप लोग देखोगे, मेन मैं बता देती हूँ, बाकी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यूनिक फीचर्स, यूनिक फीचर्स इसके क्या हैं? 3 यूनिक फीचर्स हैं इसके, मेन जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ बेटे। यूनिक फीचर्स के क्या हैं? इट ऑपरेट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जो है ये ऑपरेट करेगी, बिटवीन उनके। दूसरा यूनिक फीचर इसका क्या है? कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कैन बी अट्रैक्टिव
रिपल्सिव। थर्ड इसका फीचर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फोर्सेस, ठीक है, मोस्ट फोर्सेस इन एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या राइट कर दोगे, एक्सपीरियंस, IENCE, एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ में यहाँ पे राइट कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको क्या कर दिया बेटे, दो जो हमारी फर्स्ट टू फोर्सेस थी उनके यहाँ पे सारे मेन जो करेक्टर्स हैं वो मैंने आपको राइट कर दिए, ताकि आप इसको अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इजीली इसको जो है वो नोट की फॉर्म में बेटे आपने कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने रोल इन नेचर नहीं लिखा उसका मैंने रोल इन नेचर लिख लिया। इसमें कॉमन एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कि प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स क्या हैं कि वो अपने उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टार्स की मोशन है, और क्या था, गैलेक्सीज थी। इसके अलावा बेटे टाइड्स एंड ब्लैक होल्स भी जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल थी, ठीक है। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब ये दो मेन फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मैंने सारे यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स राइट कर दिए, ठीक है, और दूसरा क्या किसके कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कर दिए। ये आपने दोनों फोर्सेस अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेनी है। ये इनके कॉमन जो फीचर्स हैं जो इनके, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। ये एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे उतार लें, और बाकी जो दो फोर्सेस बच गई हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में उनके फीचर्स भी मैं आपको इसी तरह से राइट करवा दूंगी। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।